नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यापार गुरुजी। मैं हूं खिमानंद। दोस्तों, अभी फिर से मैं एक ज़बरदस्त एग्जीबिशन की वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आ चुका हूं और अभी मैं आया हूं कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो 2025। तो ये जो एक्सपो है ये है 32nd मतलब 32वां एग्जीबिशन है, 32वां एडिशन है कन्वर्जेंस इंडिया का। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और अभी जो है हॉल नंबर 1 से लेकर के 5 तक 10 एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। तो ये जो कन्वर्जेंस इंडिया है ये कहते हैं कि इंडियाज़ लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी शो है। तो इसमें अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी होती है, सब कुछ ही मिक्स मैच होता है। तो अभी यहाँ पर 10 एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। तो जो लिस्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, इतने सारे एग्जीबिशंस यहाँ पर हो रहे हैं। इंडिया मोबाइल एक्सपो है, स्टार्टअप एक्सपो है, स्मार्ट सिटी एक्सपो है और आपका कन्वर्जेंस एक्सपो है। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्सपो हो रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे जो आईओटी से रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड, वो आपको मिल जाएंगे। ब्रॉडबैंड से रिलेटेड, फाइबर से रिलेटेड कंपनियाँ मिल जाएंगी। तो बहुत कुछ मिलेंगे। गवर्नमेंट के स्मार्ट सिटी वाले स्टॉल्स आ रखे हैं। चलिए मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बड़ा सा एग्जीबिशन है, 5 हॉल में लगा हुआ है, 1 से लेके 5 तक सब कुछ ही इसमें मिक्स है। तो चलिए देखते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं एग्जीबिशन को, आपको फिर समझ में आ जाएगा यहाँ पर होता क्या है कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो में। ये कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो के साथ कितने सारे एग्जीबिशन लग रहे हैं। 10th स्मार्ट सिटी एक्सपो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनटेक इंडिया एक्सपो, फ्यूचर सिटीज इंडिया एक्सपो, स्मार्ट मोबिलिटी इंडिया एक्सपो, स्टार्टअप हब एक्सपो, मोबाइल इंडिया एक्सपो, एम्बेड टेक इंडिया एक्सपो, डिजिटल गेमिंग इंडिया एक्सपो, भारत एआई भारत एक्सपो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्सपो। तो इतने सारे एक्सपो जो है यहाँ पर को ऑर्गेनाइज हो रहे हैं 1 नंबर हॉल से लेकर के 5 नंबर हॉल तक। Right now I am inside the Convergence India Expo, which is technology exhibition. So according to them it's one of the biggest technology expo. So right now I came to a company's stall. They make products related to security. So let's talk to the sir and try to understand what kind of products we have. Hello sir, how are you? I'm good, thank you. So sir, please tell us something about your company and tell us about yourself as well. What do you do and what kind of products you make? Yeah. I myself L.A. Kumaran. I will hold it. Yeah. I myself L.A. Kumaran. I represent Amzeta Technologies, which is a 35-year-old company headquartered in the US. And India, we are based in Chennai. I work as the general manager for sales. So we have multiple products on display right now in Convergence Show. So one of our key product is our data storage solution, which will be useful for organizations to secure their data assets. So we have multiple models on offer, right from the entry-level models, which are suited for SMBs, to enterprise models, which can even host critical applications. So we have many customers, leading corporates invested in our data storage technology, and we've been supplying this product for over 15 years to Indian market. Okay, so what is the proper name of this? Like there is a SHAN or NAS, like, so what is the exact name of this product? So this particular product is focused on SAN, so to handle the critical application, and this particular product supports both SAN and NAS. So this will be a really affordable solution for SMBs to host both server applications as well as user data. So and we have all that data security like mirroring service and Yes. what kind of features we have? Yes. So the core data protection functionalities like RAID, which will give you protection against drive failures, those are all inbuilt. And we also have class-leading snapshot functionality that will enable customers to recover the data within seconds in case of any accidental deletion, corruption, or virus attacks, things like that. Okay, so we have this kind of products here. Apart from that, we have some more products. Let's see. We've also displayed our thin client solution. So this will be useful for again SMBs and SMEs. So this can be configured as an endpoint device to connect to a cloud hosted desktop like from Microsoft Azure Cloud, or it can be deployed as a simple desktop for lightweight user applications like in hospitals or educational institutions. So they can mount this behind the monitor, and this is very power efficient as well as feature rich. So this can handle the loads of mid-tier users also. So this comes with a pre-installed Linux OS or a Windows 11 operating system. Okay, Windows Lite
light version. Windows 11 OEM pack itself, the enterprise OEM pack itself is available with this. Okay, and so these products are available in Indian market. Yes, we have been supplying to Indian customers, mainly to universities, hospital chains, and the call centers, those kind of implementations. So this is one of our network product. So this is always connected internet. This will enable the single location customers, the customers who are having presence in only one location, and their business is largely depending on the internet. So for them, internet is the vital link, right? If there is a failure in one of the links, their business and the operations might go down. So this product will enable them to seamlessly switch between whichever is the active or the best performing connection. In addition to the regular broadband or a lease line, if in case the customer would like to connect to a 4G or a 5G network, this has the provision to have a 5G SIM card or a 4G SIM card, and seamlessly it can switch whenever there is a disruption in the internet connection. So we can insert SIM cards as well. So this is kind of load balancer. It can do load balancing, it can do failover, or it can even do link aggregation. So you can combine two links and give a throughput, better throughput also. All right, so we can connect all the connections like Airtel, Jio, and BSNL and MTNL. So we can give 4 connections, and our connections will be failure proof. Failover proof. And in addition to that, you can also have the LTE connection, the 4G or a 5G LTE via SIM also. If the broadband link goes down, lease line link goes down, still you can get seamlessly connected via the 4G or a 5G network also. So is this for enterprises only or retail customers, like small, micro? Small players, because they are the people who may not have all those sophisticated software-defined WAN technology, which is what we will be covering in the next section. So mainly for the retail customers and small customers who are present in one location. If anyone don't want to go with lease line, they can simply connect only via the 5G network with 2 5G SIM cards also. We can again do a failover or a load balancing or a link aggregation. Okay, great. So, and how they can buy this one? Yeah, so they can either buy through our value-added resellers who are present in all the major metro cities here in India, or they could also, directly in touch with us. We will also be able to supply to them if required. So this is available in Delhi, right? Yes, we can it's available, yes. Okay, so we have some more products. So let's see, and please tell us about this one as well. This one is an enterprise product. So this comes under the category of software-defined WAN. So this is for organizations which will be having multiple locations, and they will have branch-to-branch communication. Again, they will have lease lines and the other forms of MPLS, broadband kind of networks. So what this product will do is this will give you the connectivity in a secured manner. At the same time, this will also give you the protection against any kind of network threats. So it will be a dual purpose. So it will give you link aggregation, whatever we talked about earlier, the redundancy, all these things this will provide. In addition to that, you could also run some quality on service. Like you have Teams call which needs to be prioritized, or ERP application which needs to be prioritized. Those can be programmed in such a way that will use the best of the link. Whatever the regular browsing, all these things can be in a least performing link. So like that, you can prioritize the operating system. Then you could also have the firewall level security. Okay, the basic firewall security or the advanced firewall security, like the deep packet inspection, all these things also you can do. So this is for, let's say, a mid-tier branch. And if, say, there is a large branch or a customer who is having hundreds of branches, then we have a larger device that can cater to larger workforce. Okay, now let's see this one as well. So, yes. Yeah. So this is a rack mountable model. This is for enterprises. Let's say they are having about 200, 300 branches. So in the core data center, an appliance like this will be based. So this will again perform the connectivity as well as security part. The software-defined WAN solution as well as the firewall solution. And we talk about the firewall solution. This can even scale up to provide a next-gen firewall capabilities, which will be doing much more than the traditional firewall, like to the extent of extensive content filtering. So we have mapped close to about 70 million websites. So thereby we will give the granularity in terms of protecting customer against any kind of access. You can go category based, you can go URL based, you can even go content based. So the system is designed in such a way it can open up the web page and go through the contents and define whether it is safe to be given to the user or not. So that kind of advanced functionalities this can provide.
Okay, great. So you can see all the company's details, sales email ID and the phone numbers, website. So please go through that and get all the information about the company. And if you have any kind of requirement, please get in touch with the company. So now let's go to another stall. So right now I am another stall. So we have like very nice solution for the call center and the call, like if anyone has business and they are getting lots of calls. So we have software solutions and technical solutions for the calling system. So let's talk to the company's representative and try to understand all the things. Hello sir, how are you? I'm great. How are you today? I'm good, sir. So please tell me about yourself. Tell us about yourself as well as your company. What do you do? Where are you from? And what kind of products you make? Okay. So my name is Alan. I'm basically heading the sales and marketing for Workspay at the moment. So we are basically based in Cochin. We are into the industry for almost 11 years. So we have an office in Bangalore as well as in Dubai. So predominantly we provide call center solutions to the different businesses to manage their business communication seamlessly. So we have an AI powered call management solution. So it's like a full house power support wherein AI speech boards can be incorporated your calling solutions, and using that the AI speech board can actually analyze your calls, and they can analyze gender based analysis can be done, location specific analysis can be done, voice as a password can be done. So using this AI speech board, what can be done is we'll be able to give you a call summary or a call description. We can actually audit your calls and give a scoring for your agents. So all those things can be done real time. So basically an in-house QA team, they will be only able to audit a particular sample size, a small sample size of entire calls which is being happening. But using an AI speech board, what can be done is all calls can be analyzed, all calls can be monitored, all call can be audited on a real-time basis itself. So we have both inbound as well as an outbound contact center support. Apart from that, we provide lead management, ticket management, as well as all kinds of call center solutions as well. So you have complete CRM and all the features are inbuilt on that. Correct. So the most important advantage which we have with Workspace is we are not a one size fit for all a solution as such. So our solution is highly customizable. So our entire features can be incorporated to any single CRM of your own, or if you have your own developed in-house CRM or an ERP, we can incorporate our solutions. That is for managing the calls and communication part. That can be incorporated to your own solutions. Okay, and if they don't have CRM, you will provide them. Correct. If you don't have a solution, if you don't have an existing CRM, we can provide you a CRM as well. So we have a lead management as well as a ticket management solution also incorporated to our system. Okay, so if I say in a layman's language, if customer calls, IVR will take call. Correct. And it will sort the calls like if it's a male, female, and what kind of, if they are asking for technical support, if they want some kind of sales, or so it will sort calls, categorize calls, and distribute to the. Correct. So at the moment, what is happening is we have our conventional DTMF model wherein it will be like press 1 for sales, press 2 for support, press 3 for HR, all those things, right? So we'll have to manually input one number. But instead of that, right now what is going to happen is this DTMF would be speech recognized. So if you want to connect to sales team, you just have to mention sales. Now based on your voice itself, the speech board will be able to recognize that particular voice, and it is something which can be acted as a customer identification factor as well. So your voice can act as a password. So instead of an OTP or instead of a customer identification number, your voice can be recognized and your voice can be used as a password. So this is highly beneficial for banking industry or fintech industries wherein instead of giving them an OTP and asking them to share the OTP over the call, the customer's voice itself will be recognized, and based on that, customer authentication can be done. Okay, great. So and who can contact you, like micro enterprises, medium enterprises, or big enterprises? Whom do you provide service? So we cater to all such customers. So we have customers ranging from just 2 users to thousands of users as well. So we cater to every single customers as such. So there is no restriction from our end. Okay, great. So we have these features like messaging solutions, CRM integration, ticket management, call center solutions,
and telephony, lead management, predictive dialer, and virtual number. So we have these kind of solutions integrated in your software, right? Yes, and more importantly, these are our latest additions to it. So these were something which was already in place in our solutions. Right now we have added our AI capability as well into the solutions. So we have a sentimental analysis basically wherein the customer, based on the customer's call, right, based on their tonality, their voice modulation and everything, our system will be analyzing their sentiments, whether the customer is happy, sad, angry. If angry, how irritated he is. So based on their irritation level, it can be escalated accordingly. So say for example, if irritation level is 5, till 0 to 5, say for example a level 1 agent can handle. But from 5 to 10, if you want that particular call to be handled by a level 2 agent, we can automatically reroute that particular call to a level 2 agent. So all those things can be automated. Okay, great. So we have all the features: sentiment analysis, speech recognition, deep data learning, number privacy, reminder, and lead management. So privacy in the sense, say for example, at the moment, we have so many delivery systems or last mile delivery agents where the delivery agent will have to contact the customer, but we can't provide the customer's actual phone number to the delivery agent because there is a data breach. So what can happen is we can provide a number privacy by providing a number masking. So what will happen is the delivery agent will be getting a DID number. Understood? They will be initiating the call. That call will be hit to a DID and then it will go to the customer's end. So even the customers won't be getting the delivery agent's phone number. So vice versa, both their end users number will be privacy protected as. Yes, so big call centers and financial institutions already use this. Like Correct. their agents don't know, like they never know email ID, phone number, nothing. They just like Correct. The only customer's first data name. would be there. Correct. Exactly. Okay, so we have this kind of solutions. So if anyone wants to deploy these kind of solutions in their organization, they can contact to the company. So I'll provide all the details, contact details on the screen. So please contact them and get in touch with the company and get benefited from this kind of technology. So now let's see what we have in another stalls. अभी मैं यहाँ पर अनदर स्टॉल में आ गया हूँ. यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट मिल रहे हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो इनको देखते हैं और समझते हैं. तो हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे? बहुत बढ़िया. तो बताइए अपनी कंपनी के बारे में कि आप लोग की कंपनी कहाँ से है, किस टाइप के प्रोडक्ट आप बनाते हैं? सो हम बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, ब्लैक आई इज़ द ब्रांड, और हम बनाते हैं केबल्स, कन्वर्टर्स, डॉकिंग स्टेशन एंड कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस. उसमें आपका HDMI, USB 3.0, USB-C, DVI ये सब इंक्लूड होता है. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. तो यहाँ पर प्रोडक्ट हैं, आप लोगों की कंपनी कहाँ से बताया? बैंगलोर से. बैंगलोर से सर. ठीक है, तो इस तरीके के दोस्तों प्रोडक्ट्स हैं, तो इनके बारे में थोड़ा बताइए हमें. ये देखिए, ये टाइप सी हब्स है. ये आप अपने मैकबुक या विंडोज़ के टाइप सी पोर्ट से मल्टीपल चीज़ों के लिए कनेक्ट कर सकते हैं. जैसे आप उससे VGA, LAN, मल्टीपल कार्ड रीडर, USB 3.0, इस टाइप से हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज़ है. अब जैसे चाहिए तो छोटा सा एक आता है, इसको 3-in-1 बोलते हैं, मिनिमम यूजेज के लिए. तो और इसमें नॉर्मल वाले ये 1-to-1 कन्वर्टर्स हैं. इसमें आप टाइप सी से HDMI, DP, VGA कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपके कहाँ पे खरीदने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? खरीदने के लिए हमारी वेबसाइट blackeye.co.in पे जा सकते हैं. वहाँ से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं. उसके अलावा रिटेल मार्केट में भी है कि अभी? नहीं, अभी तक हम सिर्फ अपने वेबसाइट पे ही अवेलेबल है. हाँ. कितने साल पुरानी कंपनी है? ये 5 साल हो गया ये ब्रांड को आए हुए. हाँ. और आप सिर्फ अपने वेबसाइट से कर रहे हैं? वेबसाइट और B2B. ओके, तो मतलब B2B में कैसे आप दूसरों के लिए ब्रांड बना देते हैं? नहीं, B2B में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है अभी मुंबई, पुणे, चेन्नई, बैंगलोर और गुजरात. तो फिर वो आगे वहाँ से रिटेल को बेचते हैं? को बेचते हैं. यस. ओके, तो मतलब मार्केट में अगर हम ब्लैक आई ढूंढे तो मिल जाएगा? मिल जाएगा सर, आपको आराम से मिल जाएगा. दिल्ली में भी मिल जाएगा, बट ऐसे कोई प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है अभी तक. ओके, बहुत ही बढ़िया. तो इसके अलावा और क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, एक लिस्ट बता सकते हैं? हाँ है, सेम आपको USB कन्वर्टर्स मिल जाते हैं, HDMI केबल्स मिल जाती है. HDMI में 8K केबल्स भी है, DP में भी 8K केबल्स हैं, और छोटे कन्वर्टर्स जैसे DP to HDMI, DP VGA, ये सब रेगुलर यूज़ जो आते हैं वो केबल्स और कन्वर्टर्स सारे मिल जाते हैं आपको. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. तो यहाँ पे कुछ अलग प्रोडक्ट है, इसके बारे में देखते हैं. ये क्या चीज़ है?
तो ये एक टाइप सी डॉकिंग स्टेशन है जो हमने अपने मैकबुक से कनेक्ट कर रखा है, जिससे एक डिस्प्ले पोर्ट जो इसमें गया हुआ है, एक HDMI जो राइट में गया हुआ है, एक HDMI इसमें। सो आप देख सकते हो तीनों में आप अलग अलग काम कर सकते हो। सो यू कैन वर्क ऑन 1 2 3 4 screens at the same time with your MacBook using the display link technology. ओके, तो मतलब इसमें से USB भी शेयर हो रहा है, डिस्प्ले भी शेयर हो रहा है। एवरीथिंग आपको LAN के लिए भी मिलता है आउटपुट, LAN USB सबके लिए आउटपुट मिलता है। एक ऑल इन वन डॉकिंग सोल्यूशन है ये, सी पोर्ट पे सी पोर्ट से। यस, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा जो दूसरा जो HDMI से रिलेटेड भी है कुछ आपके पास? HDMI से जैसे ये हमने कनेक्ट किया है, बाहर एक वीडियो वॉल है, आप देख सकते हैं, या लेटर वीडियो में दिख जाएगा आपको, उससे हमने कनेक्ट किया हुआ है। ये HDMI हमारे पास 100 मीटर तक आती है, जो आप कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके के प्रोडक्ट हैं, और भी मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ। कंपनी का जो वेबसाइट है यहाँ पे दिख जाएगा, आप उससे जो है कंपनी में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अभी मैं और भी प्रोडक्ट आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कस्टमर आ गए, सर को मैं फ्री करता हूँ, तो आप कस्टमर को हैंडल कीजिए, मैं और प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। इस तरीके का प्रोडक्ट मिल जाएगा दोस्तों, HDMI स्विच। तो इसमें क्या है, 1 2 3 4, तो इसमें जो है 1 2 3 4 HDMI इसमें से आउट निकल सकते हैं, और 2 HDMI आउट हैं, 4 HDMI इन। तो हम इसमें से 4 इन दे सकते हैं और 2 आउट ले सकते हैं। तो इस तरीके के स्विचर आपको इनके मिल जाएंगे, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के दिख रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे भी है आपको इस तरीके का। तो ये क्या है, ये है 4-in-1 क्वाड मल्टी व्यूअर स्पीड स्विच। तो इसमें क्या है, इसमें HDMI एक आउट है, 4 इन है। तो जैसे अगर आपके पास 4 DVR हैं और एक टीवी है, तो आप ये यूज करेंगे तो सारे आपके DVR इस पे कनेक्ट हो जाएंगे और एक टीवी भी इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो सारे उसको बटन दबा दबा के आप स्विच कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको ये मिल जाता है। तो ऐसे इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो आपका जो इनका वेबसाइट है उसमें से आप देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अब चलते हैं अगले स्टॉल की तरफ। दोस्तों यहाँ पर महिंद्रा की जो नई गाड़ियाँ हैं ना, वो भी इन्होंने शो कर रखी हैं। तो ये इस तरीके के जो अभी इन्होंने गाड़ियाँ लॉन्च की हैं, अगर वो भी आप यहाँ पे आते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। ये एक गाड़ी यहाँ लगा रखी है, दूसरी यहाँ लगा रखी है। तो जो BE6E वाला इन्होंने निकाला था, जिसका ये है XEV 9E और BE6E, तो ये गाड़ियाँ भी आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। कन्वर्जेंस इंडिया एक्स, मतलब सब कुछ का टेक्नोलॉजी यहाँ पे। बहुत सारी गाड़ियाँ वाले भी आ रखे हैं। महिंद्रा का स्टॉल यहाँ पे है, उधर टाटा वाले हैं, मर्सिडीज वाले भी आ रखे हैं। तो मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब सब कुछ ही टेक्नोलॉजी कर दिया। डेटा सेंटर से लेकर के, राउटर से लेकर के, फायरवॉल से लेकर के, सॉफ्टवेयर से लेकर के, अभी यहाँ पर इनको आपको जो है ये भी मिल जाता है। तो ये था। और इधर जो है जो BE6E जिसका नाम पे वो हुआ था, मतलब जिसके नाम पे आपका जो वो कंट्रोवर्सी हुआ था, तो स्पाइस जेट वाले का नाम है ये रजिस्टर्ड किया हुआ। तो इन्होंने भी BE6E रखना चाहते थे, तो फिलहाल यहाँ पे BE लिखा हुआ है। तो ये वाली गाड़ी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी है ये, इसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो लोग बोल रहे हैं कि ये जब एक्सपोर्ट होगा तो काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो इस तरीके की चीज़ें भी आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। 3 दिन तक अभी रहेगा ये। यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे जो फाइबर से रिलेटेड होते हैं। तो ये फाइबर के टूल्स हैं। तो इस तरीके के जो फाइबर ज्वाइंटर होते हैं, ये जो है जो आपके घर पे नेट की तार आती है, उसमें फाइबर होता है उसके अंदर। तो उस तार को ज्वाइंट करने का ये मशीन होता है। तो ये इसका यहाँ पर 60,000 प्लस का ये आप देख रहे हैं, इस तरीके का मशीन है। और यहाँ पे भी ये मतलब अलग अलग फीचर वाले मशीन हैं। ये भी फाइबर जॉइंटर है, मल्टी फंक्शन OTDR, और इधर भी है। तो इस तरीके के बहुत सारे मशीन्स आपको यहाँ पर फाइबर से रिलेटेड इनके पास सारे मिल जाएंगे। 45,000 रुपये से इनके पास स्टार्ट है। तो ये 55,000 रुपये का है। इस तरीके देख सकते हैं, कॉम्बो ऑफर है। यहाँ पे भी है, ये 45,000 रुपये वाला मशीन है। इस तरीके से आप देख सकते हैं 45,000 का ये है। तो ये सारे फाइबर के टूल्स हैं। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी स्लाइसर वगैरह हैं और स्लीवर जो भी अलग अलग होते हैं, जो टूल्स होते हैं, वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से फाइबर से रिलेटेड मल्टी फंक्शन OTDR।
तो ये जो फाइबर का वायर होता है ये देख सकते हैं आप, तो इसको छिलने का काटने का वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और भी यहाँ पर बहुत सारे, जैसे ये है फाइबर टेस्टर है और ये आपका कटर है और ये प्रोडक्ट है, ये इस तरीके का आप देख सकते हैं। तो इस तरीके के सारे फाइबर से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मैं आपको कंपनी का डिटेल दिखा देता हूँ, तो जो है आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कंपनी का डिटेल है यहाँ पर है, आप इसमें ईमेल भेजेंगे तो आपको जो है सारा जानकारी मिल जाएगा। फ़ोन नंबर भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूनिक कोर करके इनका यहाँ पर कन्वर्जेंस एक्सपो में इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है, जिसमें फाइबर के सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक कंपनी है, ये आप नाम देख सकते हैं, सिरमा SGS। तो ये क्या करते हैं, ये ना PCBs बनाते हैं। तो ये गुड़गांव की कंपनी है और इनके फैक्ट्री अलग अलग जगह पे हैं। तो ये अलग अलग जो PCBs होते हैं वो जो है ये बनाते हैं। तो जो भी PCBs वगैरह होती हैं वो सब चीज़ें अगर आप किसी को बनवाना है तो ये कंपनी बना के दे देती है। OEM करती है, हर तरीके की PCBs वगैरह ये बनाती है। थोड़ा सा दूर से इसको दिखाना, तो इस तरीके के जो PCBs वगैरह हैं वो सब चीज़ें जो है आपको ये बना के दे देती हैं। और ऊपर देख सकते हैं, ऊपर इनका जो फैक्ट्री का वीडियो वगैरह है वो इन्होंने दिखा रखा है। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो ये सब इंडिया में ही ये सारे सर्किट आपको बना के दे देते हैं। तो इस तरीके की कंपनी भी यहाँ पे आई हुई है, आप यहाँ पे आके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। कंपनी का नाम मैंने आपको दिखाई दिया, सिरमा SGS, आप नेट पे इस पे सर्च कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस तरीके के सर्वर्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो है इन्होंने सर्वर लगा रखा है, देख सकते हैं। ये आपका हेक्साडेटा कंपनी है, तो इनका ये AMD का ड्यूल सॉकेट वाला सर्वर है, देख सकते हैं। ये एक सॉकेट यहाँ पे है, एक सॉकेट यहाँ पे है। और इस तरीके के इनके जो है आपके जो वो होते हैं ना रैम के स्लॉट, 16 रैम के स्लॉट हैं। तो इस तरीके के सर्वर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे इन्होंने बहुत सारे रखे हुए हैं। यहाँ पे भी है, ये इंटेल बेस्ड सर्वर है, इंटेल सिंगल सॉकेट सर्वर। और ऐसे ही बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर हैं, बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट्स इन्होंने लगा रखे हैं जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो इस तरीके के सर्वर्स हैं। और जो डेटा स्टोरेज वाली होती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेटा स्टोरेज वाला सर्वर है, स्टोरेज सब सिस्टम। इस तरीके से इसमें बहुत सारे हार्ड डिस्क लग जाते हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे इसमें 4U रैक माउंट है, बहुत सारे 36 नंबर इसमें हार्ड डिस्क वगैरह लग जाएंगे। तो इस तरीके के सर्वर्स वगैरह तो जो डेटा सेंटर होती हैं उनको चाहिए होता है और कंपनियों को चाहिए होता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे भी है, दूसरा है हेक्साडेटा HD स्टोरेज सब सिस्टम। तो इस तरीके का भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसमें कितने 60 इसमें आपके हार्ड डिस्क लग जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी से मतलब हर तरीके का टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये हेक्साडाटा करके कंपनी है, जहाँ पर आपको इस तरीके के सर्वर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों टाटा का भी गाड़ी लगा रखा है इन्होंने। और यहाँ पर टाटा का जो कर्व है, टाटा का कर्व EV कर्व है, EV नहीं है, टाटा कर्व, तो ये लगा रखा है। और इधर जो है इनका दूसरी कंपनी का जो MG हेक्टर MG वालों का स्टॉल लगा हुआ है। तो इनकी गाड़ियाँ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, बैठ भी सकते हैं उसको। और इधर जो है यहाँ पर क्रेटा का लगा हुआ है, Hyundai का लगा हुआ है। Hyundai के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी मतलब सब कुछ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे। यहाँ पर एक स्टॉल है, मल्टी यूज एक्सपो स्टॉल, नो टूल, नो डस्ट, नो लॉन्ग लाइट, नो वेस्ट। तो इस तरीके के जो मल्टी यूज वाले जो स्टॉल्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये यहाँ पर ये चला के भी दिखा रहे हैं, इस तरीके से देख सकते हैं आप। यहाँ पर आप इस तरीके से जो है ये चीज़ आप देख सकते हैं। बताइए। ये बहुत यूनिक चीज़ है अपना रीयूजेबल एक्सपो स्टॉल। मतलब एक स्टॉल को आप 25 बारी, 30 बारी, 20 बारी, कितनी बार यूज़ करिए। देखिए मल्टी यूज़ एक्सपो स्टॉल हमने लिख रखा है। ब्लॉक फिट एक्सपो किट एक नया कॉन्सेप्ट हमने चालू करा है। तो ये जो ब्लॉक्स हैं
ये वाले ब्लॉक्स आप बिना टूल्स के देखिए डेमो कैसे कर रहे हैं वो। ये बार बार यही वाले ब्लॉक्स अलग अलग शेप में अलग अलग साइज में बन जाएंगे, ठीक है। वो देखिए कितना आसानी से उसका स्किन लग गया। उधर देखेंगे आप, उधर ग्रास पैनल्स, इवन एक्रेलिक। तो इस तरीके की दोस्तों, इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ब्लॉक फिट एक्सपो किट जो है कंपनी का नाम है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कोई कंपनी है दोस्तों, ये चैंगचोंग करके, तो इन्होंने भी अपने जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो सब इन्होंने यहाँ पर लगा रखे हैं। जो भी इनके इंटरनेट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, सिमलेस कनेक्टिविटी पावर्ड बाय लीडिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, तो ये है चैंगचोंग। और इनके कैमरे वगैरह भी होते हैं, वो सब भी इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। आप देख सकते हैं इस तरीके के जो इनके कैमरे वगैरह हैं वो सब भी इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है, अलग अलग। चैंगचोंग कंपनी का नाम है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। दोस्तों यहाँ पर अनदर कंपनी है, तो जो पार्ट्स होते हैं ना इस तरीके के, जो एंटीनाज वगैरह वेब से रिलेटेड, ये सब चीज़ें भी इन्होंने यहाँ पर लगा रखी है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो सब आपको इनके पास देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके की भी यहाँ पर कंपनियाँ आई हुई हैं। तो इनका जो नाम है वो है विनसुर वेब प्राइवेट लिमिटेड। तो जो भी कंपोनेंट होते हैं आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इस तरीके के देख सकते हैं आप, जो कनेक्टर्स वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, इस तरीके के बहुत सारे। तो ये कंपनियाँ भी यहाँ पे आई हुई है और इसका मैं आपको कुछ डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा। तो अगर आपको इससे कांटेक्ट करना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये यहाँ पर शो कर रहे हैं। यहाँ पे कंपनी का डिटेल है, आप इससे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अनदर कंपनी है दोस्तों, इसका इस तरीके के जो फ़ोन वगैरह होते हैं वो सब भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो IP फ़ोन्स वगैरह होते हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। इनके पास राउटर स्विचेस वगैरह हैं, इस तरीके के ग्रैंड स्ट्रीम। अच्छा, तो जो ग्रैंड स्ट्रीम के प्रोडक्ट हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से जो भी कम्युनिकेशन के प्रोडक्ट होते हैं, VoIP और उन सब के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ इंडिया मोबाइल एक्सपो वाले पार्ट्स में। तो यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं, ये एक ब्रांड है, इसके प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे, क्वाइंट्रोन। तो इन्होंने स्टॉल लगा रखा है, तो इनके जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो सब आप देख सकते हैं। देख, कीबोर्ड, माउस और स्विचेज वगैरह हो गया, वायर, केबल, स्पीकर्स, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और ये जो फ़ैन वगैरह होते हैं लैपटॉप के, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इधर भी आप देख सकते हैं इनके जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो सब इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। ये जो है मोबाइल इंडिया एक्सपो वाला पार्ट्स है। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक जो है वायरस, ये मोबाइल कवर वाले भी हैं। तो इन्होंने अपने जो मोबाइल कवर्स वगैरह इनके होते हैं वो सब इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके के जो मोबाइल कवर्स वगैरह होते हैं वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। वायरस, जो इनका नाम है वो है वायरस। तो इनके बारे में आप जानकारी चाहिए तो ये QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। QR कोड स्कैन करेंगे तो आपको इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और ये प्रिंटर वगैरह भी इनके पास है। और इधर भी देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने लगा रखे हैं। तो मोबाइल इंडिया वाले पार्ट्स में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। लैपटॉप का स्क्रीन, स्किन, इस लैपटॉप का स्क्रीन, मोबाइल का जो वो कवर वगैरह होते हैं प्रिंटेड, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। और आगे देखते हैं, तो मोबाइल वाले पार्ट्स में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इधर देखते हैं, इधर क्या है, फास्टर चार्जिंग ऑन ग्रीन। तो ये कोई चार्जिंग से रिलेटेड चीज़ें है इनके पास। यहाँ पर फास्टर चार्जिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह इनके पास आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फास्टर चार्जिंग। तो और इधर जो है विनकॉम IT सॉल्यूशंस। तो इस तरीके के जो चार्जर के कंपोनेंट वगैरह होते हैं वो सब भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है, इनका कंपनी का नाम है विनकॉम IT सॉल्यूशंस। फ़ोन नंबर तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, फ़ोन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इनसे जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें दोस्तों आपको देखने को मिलती है मोबाइल
इंडिया एक्सपो में। तो जो भी मोबाइल से रिलेटेड एक्सेसरीज वगैरह हैं वो सब जो है इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। यहाँ पर अनदर ब्रांड है जिन्होंने अपने इस तरीके के प्रोडक्ट्स वगैरह लगा रखे हैं, जो ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह होते हैं, ये सब आप देख सकते हैं। तो ये जो है मोबाइल इंडिया का पार्ट है। तो यहाँ पर आपको और भी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये जो चार्जिंग पावर बैंक वगैरह होते हैं ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे भी इसी तरीके से रिलेटेड कोई चीज़ है, पावर जो चार्जिंग स्टेशन है। और इधर भी है कोई मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें ही आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, जो मोबाइल के स्क्रीन्स वगैरह होते हैं वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इधर भी वैसे कंपनियाँ हैं। तो मोबाइल इंडिया जो एक्सपो है इसमें आपको इसी तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह, मोबाइल से रिलेटेड कंपोनेंट वगैरह, चार्जर वगैरह, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे भी हैं स्पीकर है हॉस प्लस, कोई हॉस प्लस करके ब्रांड है, इन्होंने अपना स्टॉल लगा रखा है जहाँ पर आपको इनके स्पीकर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें दोस्तों, ये जो है जो कंपोनेंट होते हैं मोबाइल चार्जिंग से रिलेटेड वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस तरीके की चीज़ें आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी एक्सपो है वो भी लगा हुआ है। तो चलिए ये भी आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। तो स्मार्ट सिटी के नाम पे भी बाबा बनाया जा रहा है। तो इस तरीके के जो मतलब ये स्मार्ट सिटी में क्या कर रहे हैं वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर शिमला स्मार्ट सिटी का स्टॉल लगा हुआ है, अभी रांची का देखा आपने। उसके बाद यही है स्मार्ट सिटी, देखिए जो 10 मंजिले वाले जो पार्किंग बना रहे हैं पहाड़ों को बर्बाद करके, यही है स्मार्ट सिटी। तो इस तरीके के ये जो शिमला स्मार्ट सिटी है इसका लगा हुआ है। और आगे देखते हैं, आगे दावनगिरी स्मार्ट सिटी का यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, जो दावनगिरी स्मार्ट सिटी का इन्होंने दिखाया हुआ है। और इधर जो है अलग अलग स्मार्ट सिटी के जो होते हैं वो आगे देखते हैं। आगे जो है लुधियाना का है, यहाँ पे लुधियाना का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। ये देखिए लुधियाना का स्मार्ट सिटी। तो यही होता है कि स्मार्ट सिटी जो आपका यहाँ पर मेट्रो के दीवार में लगा हुआ है, पेड़ पौधे लगा के स्मार्ट सिटी बना दिए। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। स्मार्ट सिटी में क्या चल रहा है वो उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। ये लुधियाना का स्टॉल है। तो इस तरीके की चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दिखा रखा है कि भाई स्मार्ट सिटी में ये क्या क्या कर रहे हैं। तो ये जो स्मार्ट सिटी एक्सपो है वो भी इसी के साथ ही यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड उनका स्टॉल है। तो और आगे देखते हैं, आगे यही सब चीज़ें यहाँ पर सतना स्मार्ट सिटी वालों ने भी अपना स्टॉल छोटा सा लगा रखा है। तो जो स्मार्ट सिटी एक्सपो है वो भी इसी के अंदर है। तो उसके भी बहुत सारे स्टॉल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एक स्मार्ट सिटी वाले भैया यहाँ पे सो रहे हैं, तो चलो नींद भी लगती है स्मार्ट सिटी में। यहाँ पर झांसी का स्मार्ट सिटी का भी स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये है। और इधर जो है सहारनपुर स्मार्ट सिटी वालों का भी है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। स्मार्ट सिटी से रिलेटेड चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप्स का जो स्टॉल है वो लगा हुआ है। तो स्मार्ट केयर, सेफ केयर, लूका हेल्थ केयर। तो ये जो जितने भी छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं उनके यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। दिस स्टार्टअप इज़ सपोर्टेड बाय केरला स्टार्टअप मिशन। तो इन्होंने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह है। तो इस तरीके के बहुत सारे जो स्टार्टअप का पवेलियन है वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो स्टार्टअप हब है ये, मतलब स्टार्टअप एक्सपो है वो है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टार्टअप से रिलेटेड पवेलियंस यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे पवेलियंस लगे हुए हैं जहाँ पर अलग अलग जो स्टार्टअप्स हैं उन्होंने अपना लैपटॉप वगैरह लेके बैठे हुए हैं और आपको जानकारी वो दे देंगे। तो इनके पास आकर के आप
स्टार्टअप में क्या चल रहा है वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। मैंने आपको दिखाया इंडिया कन्वर्जेंस एक्सपो 2025। तो 1 नंबर हॉल से लेकर के 5 नंबर हॉल तक लगा हुआ है, बहुत सारे स्टॉल्स हैं। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत मतलब गाड़ियों की टेक्नोलॉजी भी आपको देखने को मिलेगी, पीसीबी बनाने वाले भी देखने को मिलेंगे, राउटर बनाने वाले, स्विच बनाने वाले और सॉफ्टवेयर वाले बहुत सारे आ रखे हैं। सॉफ्टवेयर वाले बहुत सारे स्टॉल हैं जो CRM होते हैं और आपके जो कॉल सेंटर के सॉफ्टवेयर होते हैं, बिजनेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, POS वाले होते हैं, सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। और उसके अलावा कम्युनिकेशन वाले आपने देख ही लिया, इलेक्ट्रॉनिक जो कम्युनिकेशन होता है उसका, सर्वर का हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फाइबर से रिलेटेड आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, फाइबर के केबल वाले आ रखे हैं, टूल्स वाले आ रखे हैं। तो इस तरीके का पूरा एग्जीबिशन है। अगर आप इस तरीके के किसी भी फील्ड में हैं और आप कुछ देखना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर आइए और एग्जीबिशन को विजिट कीजिए, आपके काफ़ी काम आने वाला है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।